Okay. So good morning, everyone. So in this video, I am going to show you how you can download and install Ubuntu 18.04 and VirtualBox in your Windows 7 operating system because I have a Windows 7 operating system. Okay. समझ मेरे पास Windows 7 operating system है. ठीक है. Okay, sir, no problem. तो से साथ में करना इंस्टॉल। नो 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 वो तो टाइम बहुत लग जाएगा ना. तो मैं आपको जस्ट अभी सारा ये प्रोसेस गो थ्रू कर दूंगा अभी. तो आप ओके अपना ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूंगा. आप चेक कर लेंगे. तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि दोज यू हु डोंट नो व्हाट इज द वर्चुअल बॉक्स, हाउ यू कैन डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम इंटरनेट एंड हाउ आईएसओ फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट. तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा. आप जस्ट मुझे फॉलो करते जाइए, बस देखते रहिए कि मैं क्या करता हूँ. ओके सर। ठीक है. So VirtualBox, what is VirtualBox basically? So VirtualBox is a tool which will enable you to run different operating system virtually on your host operating system. Okay. So in this case, my host operating system is Windows 7, and I have installed VirtualBox on my Windows 7, and then this VirtualBox will enable me to run different operating system like virtually on my Windows 7 operating system. So now, if you don't know how to install VirtualBox, you just need to search for VirtualBox on your favorite browser like Mozilla Firefox, Google Chrome. Just open Google first, okay, and type virtual box. Here, you just press the enter, and this is the download option. Okay, just click the download option, and which will appear here will be from VirtualBox OSE. So you just click on this link, and once this link opens, you just need to click on the download link here like this. You just click on download link. Click on download. You first link Windows host. Okay, downloading here, and you will be able to see this link kind of interface. Just click on this Windows host option here, and you will see that VirtualBox exe file download automatically. Like when you click on Windows host like this, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, it will download it automatically. You just wait for a minute. Yes, sir. यहाँ पे आपको शो हो रहा है VirtualBox की exe फाइल डाउनलोड हो रही है. हाँ जी सर, हो गई. यस सर। So VirtualBox exe file downloaded will here. So you just need to install it. So the installation process is really easy. Okay. It's very, when you click on the exe file, you just I'm not going to go through the installation process of VirtualBox like open the exe file and just click next. It is very simple process. I'm not going to go through installation process. मैं आपको ये installation process आपको नहीं बताऊंगा. आपने just exe file, just click on the exe file and just next. It's okay Yes, because sir. I have already VirtualBox. Okay. When you download it, yeah, when you install VirtualBox, see, आपको भी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? वही स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir, VirtualBox वाली. हाँ, एक मिनट, मैं अभी जस्ट स्विच करता हूँ. अभी जस्ट वेट. शेयर. अभी आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है? ब्लैक स्क्रीन हो गई सर. Just wait. आपको डेस्कटॉप दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So here is a Oracle VirtualBox machine. Okay. ठीक है. ओके Yes. सर। So it look like this. जब आप इंस्टॉल कर लोगे, it look like this. Okay. Now click on this link. So whenever you open VirtualBox, it's going to open Oracle VirtualBox Manager. Okay. Now we are going to download the wait for a minute. So this is the Oracle VirtualBox Manager. जब आप उसको इंस्टॉल प्रोसेस करके आप उसको एंड कर दोगे तो आपके डेस्कटॉप पे ये चीज आ जाएगी. ठीक है. आपने जस्ट उस पे
ये डबल क्लिक करना है, ये वाली चीज डबल क्लिक करनी है और डायलॉग बॉक्स आपका ऐसा ओपन हो जाएगा वर्चुअल बॉक्स का। इतना प्रोसेस समय लगा है? Yes, sir. सब बच्चे बताइए इतना प्रोसेस समय लगा? मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एक सिंपल गूगल से वर्चुअल बॉक्स सिंपल एक टाइप किया, आफ्टर देन मैंने उसको डाउनलोड किया। मैंने वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है, जस्ट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई चेंजेस नहीं करनी। जब आप एंड कर दोगे तो आपको अपनी स्क्रीन पे ये वर्चुअल बॉक्स का एक आइकन दिख जाएगा, ठीक है? इसको ओपन करना है तो आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और एकल वर्चुअल बॉक्स जो है मैनेजर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. So second, download the ISO file which is required to install Ubuntu on your virtual box. So for the downloading the ISO file of Ubuntu, so just click on Google, enter and type Ubuntu. Ubuntu. So ISO file is a must for install the Ubuntu operating system, okay, through VirtualBox. So second process is type Ubuntu in Google and here press or click on download button. Okay. So here is the official website of Ubuntu. This is the link of download option. Okay. Yes, sir. Just click download. Here, this is the Ubuntu desktop 20.0 LTS and what is LTS long-term services straight away. You will see the option here it is says. So where what's new in Ubuntu 2018 or because 2004 is the latest version of Ubuntu, okay? So which is released recently. So here you will see our downloads tab. In this there is a 20.04 LTS long-term services. So this is the latest version of Ubuntu 20.04. So you just click on this version and install the LTS version. Okay. So make sure the whatever you install Ubuntu, you install the LTS version always. Okay. LTS version ही आपने install करना है. So means long-term support version. So which will at least run for 2 years. Okay. So those code will run for 2 years. So I'm going to just click on open like this and just click. ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको ये दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? Thank you Thank for you. downloading. थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। बट मैं अभी इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज इसका जो वेट जो उसका साइज है ISO फाइल विल बी डाउनलोडेड ओके ऑन योर Windows 7 और Windows 10 और Windows Me और लाइक इट size of a 2.5 GB. I have already मेरे पास ऑलरेडी इसमें है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। So I am going to just cancel this download, okay? And also, if you want to support open to project, then you can just give small. इसमें भी आ सकता है। इसमें जब आप कोई डोनेशन देना चाहते हो तो इसमें आप डोनेशन भी दे सकते हो, बट इसमें मैं डोनेशन कुछ देना नहीं चाहता अभी कुछ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है? तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि मेरे जो ISO फाइल ये भी देखिए। फर्स्ट प्रोसेस you just need to install VirtualBox first. VirtualBox वो मैंने बता दिया आपको कैसे इंस्टॉल करना है। सेकंड, go to Google. After then type Ubuntu for install the ISO file. मैंने वो कैंसिल कर दिया था because I have already। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे मेरी पड़ी है ISO फाइल। Just wait. Okay, this is the file of आपको शेयर करवा देता हूँ स्क्रीन। आपको ये स्क्रीन दिख रही है? हेलो। Yes, sir. So Yes, this is the Ubuntu 18.045 desktop AMD 64 ISO file. So this is very important file for Ubuntu installation. Okay. yes, So sir. it's look like this.
Okay, this is the ISO file, which is very important. And the size of this ISO file is 2.04 GB. Yes, sir. नहीं समझे? हाँ जी सर. ठीक है? Okay. So again, open VirtualBox. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. एक मिनट, जस्ट वेट. आपने अभी कुछ नहीं करना. Yes, this is. So आपको अपनी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? सर और एक वर्चुअल बॉक्स दिख रहा है. यस सर. ठीक है. सो वर्चुअल बॉक्स आपने एक बार दोबारा से ओपन कर लेना है. सो वर्चुअल बॉक्स, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द न्यू बटन. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द न्यू बटन. हियर इज द न्यू बटन. ये दिख रहा है आपको? यस सर. फर्स्ट प्रोसेस में आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है. सेकंड में गूगल पे जाके आपने ISO फाइल डाउनलोड की है. ठीक है, ये दो चीज आपने करनी है. आफ्टर थर्ड प्रोसेस, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू बटन. ओके, once you click on the new button, here you can provide the name of your new machine. So my new machine name is like मैं यहाँ पे रख देता हूँ. क्या रखूँ बताओ? ubuntu ही रख दो सर. ubuntu. तुम्हारा नाम क्या है? सिमरत? यस सर. ये लो, मैंने सिमरत रख दिया. ये रख दूँ? रख लो सर. ठीक है, सिमरत खुश हो जाता है. ठीक है. सो हियर दिस इज द मशीन फोल्डर. इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. इसको ऐसे के रहने दीजिए. ठीक है. ओके. Yes sir. So I am going to just write open, and here let's say I will also give the version of Ubuntu. Let's say 20.04 like this. So just click on the first of all, you just check your window first, like this is a 64 bit or a 32 bit. वो आपके माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देख लीजिए कि आपका जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपकी 32 बिट है, 64 बिट है. यहाँ पे आपने 64 बिट यहाँ पे करनी है. क्या करनी है? 64 bit. 64 बिट. मैं एक बार चेक कर लूँ मेरा कौन सा है. एक बार जस्ट वेट. ओके, मेरी 64 बिट है. तो यहाँ पे मैं 64 बिट ही ऑप्शन चूज करूंगा. ठीक है. Yes sir. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे. ओके. Yes sir. तो ये इतना प्रोसेस है. फर्स्ट प्रोसेस इतना है. अभी हमने Ubuntu इंस्टॉल करना शुरू नहीं किया. जस्ट अभी आपको मैंने इतना एक स्टेप बताया कि जस्ट मशीन का जो नेम है वो टाइप करना आपने, एंड उसकी जो टाइप है वो आपने क्या रखी थी अपना टाइप आपने यहाँ पे रखना है. यहाँ पे लिनक्स टाइप रखना है. ये मैंने भूल ही गया, सॉरी. ये जो टाइप है ना, यहाँ आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं रखना. टाइप्स यहाँ पे लिखना है लिनक्स. फर्स्ट सिमरत, मशीन नेम सिमरत, वो अपना नाम रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो सेकंड मशीन फोल्डर, यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स जो है वर्चुअल बॉक्स की यहाँ पे इंस्टॉल होंगी. सेकंड टाइप इज योर चूज लिनक्स. यहाँ पे आपने लिनक्स इंस्टॉल करनी है. वर्जन यहाँ पे आपने करना है काम किया सर नीचे. यस सर, एक ही है. नीचे 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 सर. यस सर. Ubuntu 64 बिट. कौन सा करना है? 64 bit. Ubuntu 64 बिट. ओके. एंड देन उसके बाद आपने जो है वो अपना नेक्स्ट अपने बटन प्रेस करना है. यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? No problem sir. ठीक है. सो हियर इज द memory size. In this memory size, I generally provide the memory up to the green mark like this. इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है. हम ग्रीन मार्क तक अपनी मेमोरी को लेके जा सकते हैं. ठीक है. So whatever is allowed on my Windows 7 operating system at this point, and then I click on next like this. इसको आप एवरीथिंग जस्ट लीव एवरीथिंग. आप इसको डिफॉल्ट पे रहने दीजिए. इसको अपने चेंज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इसको ऐसे रहने दीजिए. हार्ड डिस्क को अपने कुछ नहीं चेंज करना. ये जस्ट आप एवरीथिंग जस्ट लीव एंड बाय डिफॉल्ट इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दीजिए. यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना. क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्रिएट कर देना. यहाँ पे क्रिएट कर देना. ठीक है. So next is your hard disk file type. Just leave as a VDI, which is virtual box disk image. इसको भी हमने
एज सच ऐसे ही रहने देना, इसको भी चेंज नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देना। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, डायनामिकली एलोकेटेड अपने यहाँ पे ऐसे करके रखना है। सो बेसिकली दिस इज स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क, डायनामिकली एलोकेटेड हार्ड डिस्क फाइल विल ओनली यूज स्पेस ऑन योर, इसको इसको ऐसे ही रहने देना, बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देना। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये साइज जो है मैं तो इसको चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही रहने देना। तो ये जो आपकी फाइल लोकेशन है, जो आपकी सारी उबुंटू की जो फाइल है, वो बेसिकली जो आपकी जो सारी फाइल जो कमांड्स होंगी, जो सारी फाइल्स होंगी, ओवरऑल जो आपको यू कैन से जो सारा कुछ प्रोसेस होगा यहाँ पे आपका स्टोर होगा। इट मीन्स you can choose the file location. Okay, this will be the location where your Ubuntu operating system files will be downloaded here. Okay, and installed on your Windows operating system. So if you don't have the good reason to change it, just leave at its default. Okay, Yes sir. इसको ऐसे रहने दो, just click on the create button. You see, ये आपकी मशीन क्रिएट हो गई है आपके ऑन द लेफ्ट साइड। इसी ये जो सिमरत नेम की एक जो मशीन है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी इस पे अभी आपने क्लिक नहीं करना, अभी स्टार्ट पे क्लिक नहीं करना, अभी तो 50% अभी जो वर्क है वो हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सो once you create this machine you will be able to see this new machine on the left side. So यहाँ पे ये जो 18.0 के जो सिमिलर की मशीन है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट पे बटन पे भी क्लिक किसी ने नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे Yes, आपने एक न्यू मशीन पे क्लिक किया था, आफ्टर देन क्लिक ऑन सेटिंग ऑप्शन। इस सेटिंग ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आपके ऑप्शन खुल जाएगा। ऑन द जनरल सेटिंग यू विल सी सम ऑप्शंस लाइक जनरल सिस्टम and display, storage, audio, network, serial ports, USB, shared folders, user interface. So creating this machine which is Linux and the version is Ubuntu 64-bit now. So आप क्लिक भी कर सकते हो एडवांस डिस्क्रिप्शन, डिस्क इंक्रिप्शन। सो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमने क्या चेंजेस करने, क्या नहीं चेंजेस करने। आपने जस्ट एडवांस पे क्लिक करना है, वहाँ पे जनरल कैटेगरी पे जाके आपने एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो स्नैपशॉट फोल्डर है ये आपने ऐसे रहने देना। ठीक है, ये आपने ऐसे ही रहने देना। ठीक है, और यहाँ पे शेयर्ड क्लिपबोर्ड पे आपने बाई डायरेक्शनल चूज करना है। क्या चूज करना है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी आपने चूज करना है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, so that will allow you to share your files between your host machines which is Windows in my case and your virtual machine. But it means in simple words कि बाई डायरेक्शनल यहाँ पे चूज करने का मतलब क्या है, शेयर्ड क्लिपबोर्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है। जब मैं यहाँ पे बाई डायरेक्शनल चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं दोनों साइड पे बाई डायरेक्शन चूज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एट द सेम टाइम मैं विंडो को भी यूज कर सकता हूँ और Ubuntu को भी यूज कर सकता हूँ, फाइल्स ट्रांसफर कर सकता हूँ इधर उधर। ये बाई डायरेक्शनल, नहीं समझे? लग गए समझ सर। ठीक है, सो मतलब यू कैन से यू विल बी एबल टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम विंडो एंड Ubuntu बोथ साइड। ओके, नाउ यू जस्ट क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन। इसको ऐसे ही खाली रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आप कोई भी अपनी यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो दिस इंक्रिप्शन पे भी आप इसको खाली रहने दीजिए, इसको लीव जो डिफॉल्ट है इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, सो नाउ क्लिक ऑन सिस्टम। सिस्टम नाउ इसमें क्या है, जो मदरबोर्ड की जो ऑप्शन है, सो ये जो सारी आपको ऑप्शन दिख रही है ना, बूट ऑर्डर, फ्लॉपी, ऑप्टिकल, हार्ड डिस्क, नेटवर्क, PIX3, USB टैबलेट, इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना। इसको आपने जस्ट लीव एवरीथिंग एज इट डिफॉल्ट। ओके, इसको भी नहीं कुछ छेड़ना है। प्रोसेसर पे क्लिक करना है, तो प्रोसेसर पे आप अपना एक CPU यूज कर रहे हो, 2 CPU यूज कर रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट वर्चुअलबॉक्स विल एलोकेट 1 CPU to your machine.
So if you have the option, you can increase it to whatever CPU on you one you want to use so far. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ, मैं ग्रीन पे लेके जा सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये आपको आप ऐसे भी रहने, वहाँ पे भी रहने दे सकते हो 1 CPU पे, यहाँ पे भी रहने दे सकते हो, एंड देन जस्ट प्रेस ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी ओके कर दिया है। अभी सेटिंग से फिर जाके ओके नहीं करना, अभी ओके नहीं करना, मैंने सिस्टम पे था, प्रोसेसर ये भी ऐसे रहने दो। ठीक है, नाउ डिस्प्ले, डिस्प्ले भी को भी ऑप्शन को भी आप ऐसे रहने दो, उसको भी नहीं छोड़ मतलब छेड़ना। ठीक है, स्टोरेज पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमारा जो मेन जो वर्क है ना, यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, ये जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज यहाँ पे ISO फाइल हम अटैच करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ISO फाइल डाउनलोड की थी ना, उसको हम लिंक करवाएंगे। वो कैसे लिंक करवाएंगे, यही मेन ऑप्शन है, यही मेन पॉइंट है। यहाँ पे एम्प्टी मशीन दिख रही है, एम्प्टी, यस सर। आपने एम्प्टी मशीन पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एम्प्टी मशीन जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक CD की ऑप्शन का एक जस्ट आपको एक आइकन सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला, इसको Yes, आपने sir. जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और चूज द डिस्क फॉर फाइल। ठीक है, या आपने ये जो चूज द डिस्क फाइल, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो फाइल थी ISO फाइल, जहाँ पे भी होगी वो आपने ये ओपन कर लेनी है। ये मेरी ISO फाइल यहाँ पे आ गई है, Ubuntu 18.05 डेस्कटॉप AMD 64 ISO फाइल, इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ Yes, तक? जब आप no, sir. जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो एम्प्टी की जगह यहाँ पे कुछ आ गया आपका, ये देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। यहाँ पे पहले एम्प्टी लिखा हुआ था, अब यहाँ पे क्या आ गया, Ubuntu 18.04.5. ये ISO फाइल मैंने वहां से उठा के इसमें डाल दिए, इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, नहीं समझे? Yes, sir. Got it. ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं समझ लगेगा तो मेरी वीडियो बार बार आप देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो CD के यू जस्ट सिलेक्ट योर ISO फाइल यूजिंग दिस CD आइकन एंड यू विल सी द नेम ऑफ योर ISO फाइल here, and also let me just move it further, you can just the exact name of my ISO file, उसमें जस्ट आपने क्लिक करना है और उसमें ऐड कर देना है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है आपकी ऑडियो, इसको भी आप leave everything as default, and network, इसको भी leave everything as default, and serial port को भी आपने ऐसे रहने देना है, USB को भी ऐसे रहने देना है, shared folders को भी ऐसे रहने देना है, user interface को भी ऐसे रहने देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टोरेज वाली जो है ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो CD वाली ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हमने ISO फाइल को अटैच करना है इसके साथ, एंड देन प्रेस ओके। ठीक है, Yes, sir. वो इसको चल जाना चाहिए अभी, मुझे लगता है कि इसको चल, अगर एरर ना कोई आए तो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं क्या ऑप्शन आती है, अगर कोई एरर ना आए तो। अगर आ गई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन आई है एक, होस्ट ड्राइव डी, आई है ना, आपने जस्ट सेलेक्ट नहीं करना है। सर, हमारे लिए सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अच्छा, I mean half black हो गई। I don't know. एक मिनट, जस्ट वेट जस्ट वेट अलग सा जस्ट दिख वेट रहा है। जस्ट, हाँ ये, अब आपको क्या दिख रहा है? ये सर अब आ गया। हाँ, ये सिलेक्ट स्टार्ट अप डिस्क, ये आपका होस्ट ड्राइव, ये जो सारा ये जो आपको दिख रहा होगा, इस पे आपने Yes, जस्ट क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे ये चूज करना है, Ubuntu 18 ये फाइल सिलेक्ट करनी है, एंड देन प्रेस स्टार्ट। ओके, नाउ ये आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? अभी सर स्टार्ट हो रहा है। I think so. अभी Yes. ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, इंस्टॉल हो रही है Ubuntu 18.04। अभी तो टाइम लगेगा, टेक लॉट ऑफ टाइम, तो मैं इतना सारा प्रोसेस दिखाऊंगा नहीं आपको, वो आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपनी स्क्रीन पे कर देना। मैं तो जस्ट आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी बताऊंगा कि वो कैसे ये प्रोसेस होगा। आप नेक्स्ट नेक्स्ट तो कर ही लोगे अपने, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 आवर लगेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल बैठा रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो Ubuntu Yes, आपके sir. स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, Ubuntu इंस्टॉल हो रहा है। Yes, sir. So this is the simple process of step-by-step guidance of installation of Ubuntu. So बड़ा सिंपल है, आप इस वीडियो को दोबारा देखते जाइए,
अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, अभी इंस्टॉल हो रही है। देखते हैं अभी अगली स्क्रीन क्या आएगी। अब उबुंटू पीछे से बैकएंड पे इंस्टॉल हो रही है अभी। आईएसओ फाइल इज मेन। आईएसओ फाइल Yes. आपने किस कैसे उसको पिक करके आपने अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करनी है। आफ्टर देन ही जो वर्चुअल बॉक्स है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अब ये देखिए अभी वो प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको ये स्क्रीन में कुछ दिख रहा है यहाँ पे नीचे? हाँ, ओके Yes, sir. ओके। नाउ यू विल सी दिस काइंड ऑफ विंडो। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Okay, so here on the left side you can choose the language. You can choose the language. Language. यहाँ पे मैं इंग्लिश मैंने जो है अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करी। यू वांट टू इंस्टॉल उबुंटू, यू कैन सी मैनी लैंग्वेजेस। जब आप इंस्टॉल करोगे तो मैनी लैंग्वेजेस आर गिवन हियर। सो बट फॉर नाउ आई विल चूज इंग्लिश। ओके, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो फिर मैं चूज इंग्लिश ही करूंगा ना। सो Yes, नेक्स्ट sir. यहाँ पे ट्राई उबुंटू पे आपने क्लिक नहीं करना है, just click on install ubuntu here. Okay, and wait for a minute. Okay, so on in the next window you will see the keyboard layout. Okay, this is the keyboard layout. So from here you can choose the keyboard layout and the keyboard language. So मेरा जो कीबोर्ड है वो क्या रहेगा? इंग्लिश यूएस। क्या रहेगा? हेलो, English US, sir. इंग्लिश यूएस। अगर सिमरत का कोई है अफ्रीका का तो मैं अफ्रीका यहाँ पे चूज करूंगा। नहीं है? चलो, अफगानी तो नहीं है अब सिमरत? नहीं sir. नहीं, तो यहाँ पे इंग्लिश यूएस। बाकी बच्चे को सुन रहे हैं जो मेरे को लगता है अकेला सिमरत ही। हेलो यस सर, सुन रहे हैं दीक्षा, समय लग रही कि मैं ऐसे ही ऊपर से जा रहा है? सर। नहीं समझ लग रही है नहीं समय लग रही? सर, मतलब समझ लग रही है, अच्छा समझ अच्छा आ अच्छा रहा अच्छा, है ओके ओके। समझ। और बच्चे सब बोलिए। यस सर, समझ थोड़ा लग रही है। थोड़ा फास्ट है दे रहा हूं, थोड़ा फास्ट है क्योंकि एक्चुअली वो प्रोसेस ऐसा है कि इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जब आपकी इंटरनेट स्पीड ज़्यादा होगी तो आप ऑटोमेटिकली मेरी जो वीडियो है वो देखते रहिए, और उस पर इजीली आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके उबुंटू की आईएसओ फाइल इंस्टॉल करके आप इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम ये डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। तो ये मत समझे कि सर पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, हमें समय लग रही। आप इसको फॉलो करिए बस, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है? यस सर। ठीक है। बाकी आज रवनीत नहीं आई? नहीं sir. ओके। जानवी शर्मा, जानवी शर्मा समय लग रही है? चलो वो तो है ही नहीं। राशि वर्मा समय लग रही है? यस सर। ठीक है बस। गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून हो गया, ठीक है। चलिए मैं फिर यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सो here you can choose the keyboard layout whatever keyboard layout you are using on your laptop. ठीक है, आप इंग्लिश वाला यूज कर रहे हो, कोई अफ्रीका का यूज कर रहे हो। सो ऑन योर कीबोर्ड, सो इन माय केस आई एम यूजिंग इंग्लिश यूएस। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इंग्लिश यूएस का ही जो कीबोर्ड लैंग्वेज वही यूज करूंगा। सब ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करके, यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे आपने कुछ टाइप करना है, यहाँ पे कुछ टेस्ट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। So here on this window you will see update and other softwares. So I normally just leave it as normal installation option checked, and also I leave यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और सर ग्राफिक्स से। विजुअल नहीं है स्क्रीन सर। सॉरी सर स्क्रीन विजुअल नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। सिमरत, कुछ नहीं दिख रहा? Sir, एक second. दिख रहा है sir. सिमरत ये सामने क्या, सिमरत यहाँ सामने क्या लिख रहा है, दिख रहा है? And other software, what apps would you like to install? दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है। सुबोध दिख तो रहा है बच्चे? अंकिता दिख रहा है सब कुछ? यस सर। सुबोध दिख रहा है बच्चे? सबको दिख रहा है बच्चे? वो आप स्क्रीन इधर उधर कर ली होगी आपने। ओके सुबोध, ओके अपने कहाँ चले गए? सो ओके फाइन।
So I'm going to just check this option like this, and which is installed third party softwares for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. Okay, so you just check all the options which I have checked, and then click on the continue button. Okay, and just wait for a minute. Okay, and then click on the continue click कर दिया, and here in the installation type just leave this option as default. इसको भी आपने default ही set करके रखना है. So ये आपको ये warning है, this will delete all your program document, photos, music and any other files in all operating system. तो आप टेंशन मत लीजिए, ये लिखा हुआ ना erase disk and install Ubuntu. So which is erase disk and install Ubuntu. So this is not going to erase anything because you are installing Ubuntu on your virtual box, not on your operating system. Okay, ये installing Ubuntu on your hardware. So Yes, sir. ये आपके वहाँ पे नहीं install कर रहा है. So don't worry, it's not going to erase anything. Okay, or anything from your Windows operating system, any files, your personal file. Just leave it as by default. इसको default ही रहने दीजिए. इसको आप ऐसे कुछ नहीं problem है. ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसको विंडो पे इंस्टॉल नहीं कर रहे, आप इसको वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर रहे हो. तो वहाँ पे वो कह रहा है कि वो सब कुछ इंस्टॉल कर, सब कुछ डिलीट करके आपको मैं नया Ubuntu इंस्टॉल करने का परमिशन दे रहा हूँ. तो आप घबराइए मत, ये आपका विंडो में आपको कुछ नहीं इंस्टॉल डिलीट करेगा, कुछ भी मतलब फोटोज डिलीट नहीं करेगा, घबराइएगा मत. एंड जस्ट लीव इट एज जो अपना बाय डिफॉल्ट जो उसका ऐसा है ऐसे रहने दीजिए, कोई क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल नाउ. ठीक है, एंड वेट फॉर अ मिनट. So we'll see this warning which says if you continue the changes listed below will be written. I will just click on continue. Okay, ये आपने just एक warning है, आपने इसको continue पे क्लिक कर देना है, कोई problem नहीं. ठीक है, यहाँ पे just click on continue button. Okay, Yes, sir. so now in the next step you can just wait for a minute. It takes I think internet is slow, थोड़ा सा टाइम लेता है ये. ठीक है, साथ साथ में मैं इंस्टॉल करके आप just wait for a minute. Okay, so where are you? So this is the basically choose the location which is near to your physical location. Okay, so I have chosen like this red. यहाँ पे ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ उसको, कोलकाता. ठीक है, तो you just press on continue. So उसको आपने कंटिन्यू करके. ओके, सो यहाँ पे ये चीज मेन है. ठीक है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके एंड हियर यू कैन जस्ट गिव द नेम टू योर Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू जस्ट राइट कोड लाइक मैं सिमरत का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड एज अ कंप्यूटर नेम हियर आई कैन इवन रिमूव द वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम द एंड बिकॉज I just want to give the same name as the computer name. Like मैं यहाँ पे कोई नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल कौन सा नेम दे, सिमरत ही दे दे. मर्जी सर. सिमरत दे देते, खुश हो जाता है वो. सिमरत, सिमरत, ये सिमरत वर्चुअल बॉक्स आ गया वहाँ पे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? ठीक है, तो यहाँ पे सिमरत का ऑपरेटिंग सिस्टम अब इंस्टॉल होगा और यूजर नेम भी सिमरत ही रहेगा. जब भी हम यूजर नेम इंस्टॉल करेंगे, सॉरी यूजर नेम पे हम क्लिक करेंगे तो सिमरत ही वहाँ पे नजर आएगा, वो मैं करके दिखा दूंगा. सो आप यू कैन डू द ऑल्सो जस्ट प्रोवाइड द नेक्स्ट, यू जस्ट प्रोवाइड द पासवर्ड लाइक सिमरत 1 2 3. This is fair password, it's okay. Simrat 1 2 3. I think this is good. Okay, so you just select on require my password to log in. Choice is yours. If you click on login automatically, but मैं recommend करूँगा require my password to log in and then press continue. मैंने पासवर्ड रखा है सिमरत 1 2 3. क्या रखा है?
सिमरत 1 2 3 सो yes sir. आप सो नाउ सी, ये जो आपका प्रोसेस है अब ये इंस्टॉल होना, आपकी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन एंड नाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ उबुंटू विल स्टार्ट ऑन योर virtual box. So now at this step you don't need to do anything until Ubuntu be installed on your virtual box. So you just need to wait for some time. इसमें आपको हाफ एन आवर भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 1 आवर भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, आपका वेलकम टू उबुंटू आ गया, इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लास तो लगी रही है, हम साथ साथ भी आज इसको स्टार्ट करके जाएंगे, ठीक है, उबुंटू को। इट्स ओके। yes sir. सो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगी, एक ऑप्शन आएगी रीस्टार्ट की ऑप्शन आएगी बीच में एक, जहाँ तक मुझे याद है। सो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये देखिए कॉपिंग फाइल्स हो रहा है, ये प्रोसेस सारा चल रहा है भी, ये सारी जो बार है ये सारा इंस्टॉलेशन चल रही है, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स पे जिसका नाम है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी पूछेगा कि रीस्टार्ट करना कि नहीं करना। जब वो रीस्टार्ट की ऑप्शन आएगी तो वो 15 मिनट के बाद भी आ सकती है, और देखते हैं कितनी देर के बाद आएगी, इसको चलने देते हैं और क्लास भी ऐसे चलती जाएगी। तो आपको इस पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि ये एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो आप, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है जिसका नाम है उबुंटू। आप विंडो पे वर्चुअल बॉक्स के ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हो और कर सकते हो। सो सिंपल, आपको मैं रिपीट कर दूं, मैं इसलिए आपको बातों में ये रख रहा हूँ क्योंकि आपको मैं रिवाइज कर दूं थोड़ा सा। सबसे पहले आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, जो कि मैंने अभी सारा बताया। गूगल से वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना है उसके स्टेप्स मैंने नहीं दिखाए क्योंकि वो टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा उसको भी। तो जस्ट आपने वो क्लिक 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 एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर दिया। जब आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है तो वर्चुअल बॉक्स आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है, फिर उसको मिनिमाइज कर देना है। आफ्टर दैट सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज योर ISO फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट ISO फाइल। सो ISO फाइल जो है वो आपने इंस्टॉल करनी है, लाइक ओपन गूगल एंड देन जस्ट टाइप ubuntu and go to download link button and then go to Ubuntu 20.0 and Ubuntu 18.0 LTS. So LTS means long term service. Long term service पे जब आपको 1-2 साल के लिए वो चीज़ रहती है, वो आप फीचर्स उसके रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। तो आपने वो इंस्टॉल करनी है। वो आई थिंक नियर अबाउट 2.4 GB की वो फाइल है जो आपके डेस्कटॉप पे वो सेव हो जाएगी। आफ्टर देन वो आपको वो ई ड्राइव में या डी ड्राइव में या सी ड्राइव में आपने उसको सेव कर लेना ISO फाइल पे, ठीक है। सो ओपन थर्ड स्टेप इज योर वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स आपने ओपन करना है, फिर आपने न्यू मशीन सॉरी वर्चुअल बॉक्स की न्यू मशीन पे आपने क्लिक करना है। आपने वो न्यू मशीन पे आपने सिमरत का नेम सॉरी सिमरत का नाम नहीं लिखना, अपना नाम लिखना है। तो आपने उस पर नेक्स्ट क्या था उसमें भूल गया मुझे, अभी अभी कराया था मैंने, हाँ ओके। आपने Oracle 64 बिट वाला जो है Ubuntu 64 बिट वाला चूज करना है, फिर आपने वो आपकी मशीन क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर देन आपने वो स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक नहीं करना है। आफ्टर देन सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आपने ISO फाइल जो वहाँ पे बाई डायरेक्शनल चूज करना है, फिर बाई डायरेक्शनल चूज करना है। आफ्टर देन स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज पे जाके आपने ISO फाइल उठानी है, पिक करनी है कहाँ पे, जहाँ पे आपकी ISO फाइल इंस्टॉल हो रखी है और जहाँ पे आपकी डाउनलोड हो रखी है, इंस्टॉल नहीं हो रखी, डाउनलोड हो रखी है। तो आपने वहाँ से पिक करनी है। तो वो जो एक CD वाला बटन दिखाया था मैंने, वहाँ पे हमने जस्ट क्लिक करना है। आफ्टर देन आपने वो उसको पिक करना है, उसको मर्ज करना है इसके अंदर, फिर आपने कंटिन्यू करना है, फिर आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कोई एरर नहीं, आपके सामने देख रहे हो कोई एरर नहीं है।
अभी आ नहीं रही है अभी कोई एरर। तो यहाँ पे रिट्रीविंग फाइल 94 ऑफ 135 आपको दिख रहा होगा। हेलो, मैं अकेले बोलता जा यस रहा हूँ। सर, दिख मुझे रहा है। लगता है आप सब बोर तो नहीं हो रहे। नो सर। भैया आज इंस्टॉलेशन हाँ, सिखा सर। रहा हूँ, आपने बोला था सर इंस्टॉलेशन सिखा देना, मैं सिखा रहा हूँ। ये सब एक्चुअली मेरे पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है ना, इसलिए वो म्यूट अच्छा किया। अच्छा, हाँ इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। सो रिट्रीविंग फाइल 135 ऑफ 135, ये थोड़ा सा इट टेक्स आई थिंक 10 मिनट 15 मिनट, सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो हम इस पे वेट ही कर सकते हैं, ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके ओके। So installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. You just click the restart now button and wait for a minute. So restart button पे जब आपने click किया, at this point it says please remove the installation medium. Okay, so then press enter. Okay, and now I can see the Ubuntu operating system is starting, and now I can see this coding like dev, SDA, clean files like blocks. आपने एंटर भी प्रेस करना है। फेल टू सेंड होस्ट, ये पता नहीं क्या आ गया है। ये चल जाए यार, एरर मत शो करो। ओके, सो उबुंटू अब इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। आई थिंक अभी भी 1-2 मिनट लेगा शायद। So this is the this screen is the Ubuntu operating system screen. Okay. You just wait for a minute. After that, you can see the login window. Okay. Yes, sir. Just wait. Yes, sir. Just wait for a minute. अभी वो प्रोसेस शुरू हो रहा है पीछे। After some time, you see the login window. This is the login window of Ubuntu operating system. Okay. So if you remember, this is the username which I have give my Ubuntu operating system. कौन सा दिया था? You just click on click on Simrat user, and the password is your बोलो Sir, Simrat 123. Simrat 123 and click on Sign in. sign in. So password which I have given at the time of installation process. You remember na? Yes, sir. Simrat 123. Okay, and obviously again wait for a minute. So finally, this is your Ubuntu operating system screen. This is Ubuntu operating system. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये है Ubuntu operating system. कैसा है दिखने में? विंडोज से बिल्कुल अलग है ना? Yes, sir. सर फुल जूम होता है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल होता है, उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? यस। उसके लिए कौन? आपको एक यू जस्ट क्लिक ऑन द मैक्सिमाइज। अगर हम मैक्सिमाइज बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं ना लाइक दिस, तो ये आपको स्क्रीन इतनी ही शो करेगा, यस ठीक सर। है? यू विल सी दैट दिस मच, मतलब कि इतना ही शो करेगा, इससे ज्यादा नहीं शो करेगा, ठीक है? सर अगर व्यू में जाके फुल स्क्रीन करें फिर भी ऐसे इतना ही शो करेगा? नहीं करेगा। कहाँ पे? व्यू पे जाके नहीं, यस सर। उसकी नहीं, ये देखिए ना, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ना सारी यहाँ पे, ओके ओके। ये फिर वो चीज नहीं रहेगी। यस सर। तो
अब इसको एक मिनट यार, तो ये आपका इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको इसको पूरा अपने स्क्रीन पे शो करना है लाइक मैक्सिमम, तो आपको पूरा स्क्रीन पे आपको करना है। ये क्या हो गया है, अभी अच्छा बना था। स्टार्ट, दोबारा से इसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ये ठीक है, सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है, कैसे वो जो सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। ये आपके सारे जो है आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस थे उबुंटू के, सारा क्लियर है, इट्स ओके। यस सर। यस सर। अभी मैं यहाँ पे Yes, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आज के लिए आज का जो सेक्शन था वो था अबाउट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इंस्टॉलेशन उबुंटू थ्रू वर्चुअल बॉक्स। ये आप फॉलो करिए और उसको देखिए कि कैसे इंस्टॉल करते हैं हम उबुंटू को, कहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के थ्रू हम इंस्टॉल कैसे करते हैं अब उबुंटू को। सो ये प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने लैपटॉप पे उबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करने जा रहा हूँ, ठीक है।